The Nifty Tech Index crashed 10% last week, erasing 5 weeks of gains, crore rupees or $26.6 billion in market value this past week. This was also the steepest weekly decline since March of 2020, when the COVID pandemic sent the index tumbling to 13.6%. इंडिया में एआई रेडीनेस इतनी अच्छी है कि हमें टॉप लीडरशिप एआई समिट करते हो और हेडलाइंस ये रहती है. This is a controversy around Galgotia's University. Galgotia's University has been asked to vacate the AI Summit Expo immediately. Now, controversy over university showcasing a Chinese robot. Now, Galgotia's under fire for showcasing Chinese robot at the AI Summit. They were claiming that it is their AI, it is their robodog, and this was a Chinese robodog. टॉप इंडियन आईटी फर्म्स के प्रॉफिट डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं. इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंटीग्रेट कर रही है डिफरेंट अमेरिकन बेस्ड या फिर यूरोप बेस्ड एआई अपने वर्क फ्लो में. Company TCS has partnered with Anthropic to accelerate enterprise AI. The Indian IT giant has partnered with Anthropic, the AI safety and research company, to bring advanced artificial intelligence to some of the world's most regulated industries. So what exactly does this partnership mean? At its core, this collaboration integrates Anthropic's Claude AI models with Infosys Topaz. Wipro is back in focus after the IT major announced an expanded partnership with US-based software company ServiceNow, aimed at accelerating the adoption of agentic AI across enterprises. February 2026 $50 billion वाइप आउट हो जाते हैं इंडियन आईटी से, और इनमें से $26 billion तो सिर्फ एक हफ्ते में वाइप आउट होते हैं. The Nifty Tech Index wiped out 2.5 lakh crore rupees or $26.6 billion in market value this past week. This was also the steepest weekly decline since March of 2020, when the COVID pandemic sent the index tumbling to 13.6%. अकेले February 4 में ही इंडियन की टॉप आईटी कंपनी TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, SCL एज वेल एज इंफोसिस के शेयर्स 5 to 8% तक डाउन थे, और ये सारी चीजें एक सिंगल डे में हुई थी. और रीजन कुछ नहीं था, ना कोई वॉर न्यूज थी, ना कोई ट्रेड वॉर था, ना ही कोई सैंक्शंस थे, एज वेल एज कोई पॉलिसी चेंज नहीं थी. बस एक अनाउंसमेंट थी ऑफ क्लॉड एआई, जिसने पूरे इन्वेस्टर्स को पैनिक कर दिया था फॉर इंडियन आईटी स्टॉक्स. As IT stocks collapsed, and the numbers are brutal. The Nifty IT index fell by over 6%. Recently, Anthropic released an update. Anthropic is the company behind platforms like Claude. लास्ट 9 months में सिर्फ 17 एम्प्लॉयज नेट एडिशन हुआ है इन टॉप आईटी फर्म. एज वेल एज निफ्टी आईटी इंडेक्स 2024 में 47,000 पॉइंट्स में चलता था, और आज की डेट में 27 से लेकर 28,000 पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है. दैट इज द सिग्निफिकेंटली 30 to 40% का ड्रॉप इन 2 years. और ये सारे एविडेंस आफ्टर कोविड हमें ये कंक्लूड करते कि कोविड ने भले ही दुनिया को तो खत्म नहीं किया, बट इंडियन आईटी की उल्टी गिनती जरूर शुरू कर दिया है. कुछ कॉन्ट्ररी यहाँ पर आईटी कंपनीज ऑफ इंडिया का रेवेन्यू ग्रोथ 6.1% से बढ़ चुका है इन FY 2026, और इंडियन आईटी पार्टनरशिप कर रहा ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और AWS. The Indian IT giant has partnered with Anthropic, the AI safety and research company, to bring advanced artificial intelligence to some of the world's most regulated industries. So what exactly does this partnership mean? At its core, this collaboration integrates Anthropic's Claude AI models with Infosys Topaz. Company TCS has partnered with Anthropic to accelerate enterprise AI adoption. Wipro is back in focus after the IT major announced an expanded partnership with US-based software company ServiceNow, aimed at accelerating the adoption of agentic AI across enterprises. The announcement sparked strong investor interest and Wipro shares rising sharply in India. यहीं पर सारे एविडेंस फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव
कंफ्यूज कर रहे कि एक्चुअल में क्या आईटी एक डेड प्रोसीजर में फॉलो हो रही है या फिर एक नई ग्रोथ का चैप्टर लिखने वाली है। इंडियन आईटी वर्किंग के मामले में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो करती है, क्योंकि इंडियन आईटी वर्क करती ऑन द रिप्लेसमेंट। इंडियन आईटी का इनिशियल ग्रोथ ही रिप्लेसमेंट पे चालू हुआ था। इनिशियल माइलस्टोन इस तरह था कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी अपने अमेरिकन एम्प्लॉयज को हटा के जो अदर सर्विसेज हैं इंडियन आईटी से आउटसोर्स करा देती थी। एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आईटी सर्विस देखने वाला व्यक्ति हो, या फिर एक आईटी इंजीनियर हो जिसकी सैलरी एक डिसेंट इनफ थी, उसको रिप्लेस कर रहा था इंडिया में बैठा हुआ एक इंजीनियर जिससे ठीक ठाक काम आता था और जिसका सैलरी पैकेज भी काफी कम था। इट जस्ट सिंपल एज दैट कि एवरेज सीनियर इंजीनियर की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 lakhs पर एनम है। इन शॉर्ट अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें, इट्स अप्रोक्सीमेटली $8,000 to $9,000। एज वेल एज अगर एवरेज में यूएस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, दैट इज $149K, बिकॉज इंडियन आईटी प्रोवाइड करता था सर्विसेज। जनरली ये डेवलप नेशन को ही प्रोवाइड करता था सर्विस, जिसमें मेजरली शेयर था यूएसए का एज वेल एज यूरोप का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द शेयर कंबाइंड बोथ। एंड सर्विसेज आईटी की ये थी आईटी सर्विस जिसमें मैक्सिमम पोर्शन ऑफ रेवेन्यू इंडियन आईटी कंपनीज का आता है, एज वेल एज एप्लीकेशन मैनेजमेंट, क्लाउडवेयर, टैक्स सपोर्ट, बीपीओ एंड अदर सेक्टर जो भी सर्विसेज डिमांड करी जाती थी बाय द अमेरिकन बेस्ड कंपनी टू द इंडियन बेस्ड कंपनी, वो सारी सर्विस बेस्ड चीजें इंडिया के आईटी फर्म्स करते थे। एंड फॉर ईयर्स, एज वेल एज ईयर्स भी नहीं बोलना चाहिए, एक एरा तक ये सिंपल सिस्टम वर्क किया फॉर इंडियन आईटी until the client और द अमेरिकन बेस्ड कंपनी मोर ऑप्शन की तलाश में नहीं जाते। और यहाँ पर फिर इंडियन आईटी का सबसे बड़ा दुश्मन या फिर एक मॉन्स्टर अराइव करता है। ना आईटी को जनरली दो कंपनीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। एंड द मोस्ट इंजीनियर्स जो भी टेक से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो सब ये दोनों कंपनीज के बारे में जानते हैं। बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं या फिर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति से एक सवाल पूछना है जो शायद तक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो या फिर कोई बच्चा हो। सवाल ये है कि व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट डू, व्हाट डज अमेजॉन डू, व्हाट डज एनवीडिया डू, व्हाट डज इंटेल डू और व्हाट डज एआई डू। नाउ मोस्ट सेटिस्फाइंगली आपको इसके आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो एक 15 ईयर्स का किड हो, चाहे नॉन टेक्निकल बंदा हो, कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स है जस्ट लाइक पावर पॉइंट हो गया, को पायलट हो गया एंड एसेक्ट्रा प्रोडक्ट जिससे वो ये सब काम करता है फॉर ऑफिस वर्क। एज वेल एज आपको अमेजोन के भी कुछ अलग अलग मिल जाएंगे कि अमेजोन के वेब सर्विस चलती है, एज वेल एज अमेजोन का शॉपिंग ऐप है एंड अमेजोन प्राइम एंड एसेक्ट्रा थिंग्स हो सकती है। सबके आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बट थोड़ा सा आप क्वेश्चन चेंज करते हैं जब हम ये पूछते हैं अपने इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में, व्हाट डज इंफोसिस डू, व्हाट डज टीसीएस डू, व्हाट डज विप्रो डू और व्हाट डज कैपजेमिनी डू। तो यहाँ पर कोई भी नॉन टेक्निकल व्यक्ति एज वेल एज जो टेक्निकल में भी, वो भी इस आंसर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वे में दे रहे होंगे जहां पर सामने वालों को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं इन दोनों ही कंपनीज का एक्सप्लेनेशन किसी को देता हूं तो आई फील कि हाँ, मुझे सामने वाले को सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर अपनी जो टॉप आईटी कंपनीज है उनका एक्सप्लेनेशन देना काफी मुश्किल पड़ रहा होता है। और जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज वही हमें लाते हैं कि दीज आर द कंपनीज जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, एज वेल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एनवीडिया, इंटेल, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इंडियन आईटी कंपनीज उनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मतलब इन शॉर्ट ये एक सब टायर की तरह है फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इंडियन आईटी को बहुत डीप डाउन समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक बहुत ही आलीशान 5 स्टार होटल है आपके शहर में। अब टॉप 5 स्टार होटल का ओनर है दैट इज अपना ओब्रॉय। ओब्रॉय होटल जो है वो एक्चुअल में रूम रेंट देता है, उससे उसका रेवेन्यू आता है, दैट इज प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट यानी कि उसका रूम, और उसके बेस पे वो चार्जेस लेता है। ये प्रोडक्ट तभी वर्क करेगा जब हम उस रूम की साफ सफाई कर रहे होंगे या फिर बहुत ज्यादा हाउसकीपिंग अच्छी होगी, एज वेल एज सब चीजें वेल मेंटेन्ड होगा। तो यहाँ पे ओब्रॉय बोलता है कि ये सब चीजों को मैं नहीं करूंगा, मैं ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर कंपनीज रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट्स टीवाई कंपनी, और टीवाई कंपनी कुछ नहीं करती है, वो हाउसकीपिंग कर रही होती है एंड डिफरेंट मेन्यूज को कुक कर रही होती है एंड एक्सेट्रा थिंग्स कर रही होती है। इसके बेस पे उन्हें एक
ओबरॉय कंपनी से कुछ ना कुछ पेमेंट्स मिल रहे होते हैं, या फिर बोले जब पर आवर का उन्हें पेमेंट मिल रहा होता है। टीवाई कंपनी को भी खुद तो कर नहीं सकती है, मतलब टॉप मैनेजमेंट साफ सफाई तो करेगा नहीं या फिर हाउसकीपिंग करेगा नहीं, तो उसके लिए वो हायर करता है इन द सिंपल या फिर बेसिक पे में लोगों को जिनका सैलरी ज्यादा से ज्यादा 3.5 lakhs पर एनम होगा। उनके थ्रू वो पूरा काम करते हैं और अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। अब टीवाई कंपनी को पेमेंट्स मिलती है फ्रॉम द ओबरॉय इन समवॉट क्रोर्स एज वेल एज, ये कुछ लैक्स देती है अपने एम्प्लॉयज को। और टीवाई कंपनी का प्रॉफिट इधर पर ये है डिफरेंस बिटवीन जो उन्हें ओबरॉय से मिल रहा है, ओबरॉय कंपनी से मिल रहा है, एज वेल एज जो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को देना है, उस बीच का जो डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट है। अब इस पूरे एग्जांपल को चेंज कर दो कि ओबरॉय कंपनी कोई और नहीं, हमारी अमेरिकन बेस्ड कंपनी या फिर बोला जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और यहाँ पर जो हाउसकीपिंग करने वाले व्यक्ति वो हमारे इंडियन आईटी इंजीनियर्स हैं, एज वेल एज जो टीवाई कंपनी है वो और कोई नहीं, वो है टीसीएस, विप्रो, एचसीएल एंड अदर सर्विस बेस्ड कंपनी जिनका प्रॉफिट ही एक्चुअल में डिफरेंस है बोथ द पार्टीज। अब ये मॉडल इसलिए सस्टेन करता रहा क्योंकि सालों से जो हमारी ओबरॉय कंपनी थी या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थी, उनका एक डिमांड रहता था, आई वांट द चीपेस्ट लेबर, और उन्हें वो चीपेस्ट लेबर मिला इन इंडिया, क्योंकि इंडिया एज अ फैक्ट कि इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट था, इफिशिएंसी थी, एज वेल एज इन लोग से इंग्लिश बोलते आता था। अनलाइक चाइना जहां पर स्ट्रगल करती कंपनीज, इंडिया वाज द बेटर ऑप्शन फॉर द सर्विस बेस्ड। आज के डे में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, जहां पर कंपनीज पहले बोलती थी कि सबसे सस्ता टैलेंट हमें कहां मिल जाएगा या फिर सबसे सस्ते वर्कर्स हमें कहां मिल जाएंगे। अब क्लाइंट्स कहती है व्हाई आई नीड टू हायर इवन ह्यूमंस। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इंडियन आईटी सेक्टर की धज्जियां उड़ा, जहां पर लाखों लोग अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। Top Indian IT companies that are TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra and HCL 30 years से भी ज्यादा से सस्टेन कर रही है। एंड अगर TCS की बात करें तो वो शायद तक वो 50 साल से सस्टेन कर रही है। 30 years ऑफ लेगेसी का टोटल वैल्यूएशन 5 कंपनीज का समवॉट है $257.4 billion। बट एक कंपनी जो 2021 में फाउंडेड हुई थी, आज 2026 में उसका वैल्यूएशन है $380 billion। मतलब बोला जाए तो जो टॉप 5 कंपनी कंबाइंड ऑफ इंडियन आईटी जिनकी 30 इयर्स ऑफ लेगेसी है, वो 100 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर से पीछे हैं ये कल की आई कंपनी या फिर 2021 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी से। ये एंट्रोपिक वही कंपनी है जिसकी वजह से एक दिन में टॉप इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर्स 5 to 8% गिर गए थे। ये एंट्रोपिक का ही प्रोडक्ट है क्लॉड एआई, और क्लॉड एआई से इतना ज्यादा क्यूरियोस इसलिए था क्योंकि क्लॉड एआई एक अलग लेवल ऑफ एआई टूल था जो कि आपके कोवर्क में हेल्प करने वाला था विथ इट्स 11 एआई प्लगइन। ये आपको एक सपोर्ट देने वाला था इन द लीगल, सेल्स, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस एसेट्रा एरियाज में, एज वेल एज 30 to 50% ऑफ वर्क ऑटोमेशन ये कर सकता था। मतलब देखा जाए इन द आईटी सर्विस, जिस एरिया पे आईटी पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, मतलब जो आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज जिस एरिया को पूरे तरीके से सॉल्व कर रहे थे, ये क्लॉड एआई मिनटों में वो काम करने वाला था। मतलब इंडियन आईटी की टॉप डिपेंडेंसी जिस सेक्टर में थी या फिर जिस एरिया ऑफ वर्क में थी, उसको ये किल कर रहा था, और ये पैनिक इसी वजह से था मार्केट में। और क्लॉड एआई एक टाइप का इंडियन आईटी को पूरी तरीके से इनडायरेक्ट टारगेट कर रहा था। इनडायरेक्टली वे में इंडियन आईटी के ऊपर एआई अलग अलग लेवल पे अटैक कर रहा है। बट हमें ये सोचने की जरूरत है कि इंडिया एज अ नेशन कितना रेडी है फॉर द एआई। यहाँ पर EVM is already hacked. We need to go through with wallet paper. We need to go through with that. मैं खुद एक IT सेक्टर में हूँ. I know where it is very easy to hack EVM. Very coding होती है उसमें. Python full stack की कोडिंग होती है सर उसमें Python full stack की कोडिंग होती है. उसको हैक करना बहुत ईजी है. सिर्फ 3 कोड बदलने में हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। पर्सनली इस वीडियो पे 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट इज दैट कि आई लव द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस गाय कि अबाउट द EVM हैक बीइंग हैक्ड बाय द पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। नाउ जनरली मैं बोलूं तो मैंने अपने कॉलेज दौरान पे ही थोड़ी बहुत कोडिंग स्टार्ट की थी, और ये कोडिंग का बेसिक नॉलेज से ही मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ। मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस को ट्राई आउट किया और शायद तक मैं 1% भी नहीं पहुंचा, पर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है जो मैं एज अ नॉन CS गाय भी बता सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
सिंटेक्स एरर जैसी चीज इज लाइक कि आपने कोई कोड गलत लिखा तो आपको सिंटेक्स एरर आता है। इन शॉर्ट, अगर आपने कुछ कोड गलत लिखा तो वो कोड कभी रन ही नहीं होगा, और जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है वो बहुत ही फिशी लाइन है। एज वेल एज दूसरा, पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। नाउ पाइथन इज द लैंग्वेज, बट फुल स्टैक अलग ही लेवल के, मतलब ये तीन चीजें कंबाइन करना बहुत अजीब है। फुल स्टैक का मतलब होता है तो जो फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड दोनों काम आता है उसको फुल स्टैक बोलते हैं। मतलब द वन फ्रंट एंड डेवलपर भी है एज वेल एज बैक एंड डेवलपर भी है, उसे फुल स्टैक डेवलपर बोला जाता है। और ये थोड़ा सा फिशी लाइन हो जाती है कि ये तीनों कंबाइन करने वाली बात। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मेरे नॉलेज इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, आप इस वीडियो से पूरी तरह कंफर्म हो जाओगे। सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम, वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक। एंड देन यू ब्लेम गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल रही है। अब तुमने अगर ध्यान से सुनो, इस बंदे ने क्या बोला, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है। पहली बात तो लैंग्वेज का नाम सिर्फ पाइथन है, पाइथन फुल स्टैक का मतलब कुछ और होता है। सेकंड थिंग, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ईवीएम की कोडिंग होती है लो लेवल लैंग्वेजेस में, जैसे कि सी हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई। लेकिन अभी आगे सुनो सर, उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने। फर्स्ट थिंग, सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि तुमने कोई कोड लिखा है और लिखने में ही गलती कर दी है, एरर। और अगर सिंटेक्स एरर है तुम्हारे कोड में तो तुम्हारा कोड रन ही नहीं कर सकता, यानी कि ईवीएम मशीन काम ही नहीं करेगी अगर उसमें सिंटेक्स एरर है, जो ये कह रहा है कि सिंटेक्स एरर ठीक कर देगा। आई होप इन माई टेक कि ये जो वीडियो है ऑफ आईटी इंजीनियर, काश ये फेक हो। आई मीन कि ये व्यक्ति एक्चुअल में आईटी में वर्क ना करे, क्योंकि अगर ये आईटी में वर्क कर रहा है तो द पीपल लाइक मी, जिसने कोडिंग बिल्कुल एक नॉर्मल वे में थोड़ी सी देख ली थी कि बेसिक पता चल गया था कि कोई कुछ बात कर रहा है तो तब पता चल जाए बेसिक पैटर्न्स वगैरह, वो तक आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितना ज्यादा गलत है। तो अगर ये आईटी में है तो आप समझ के रखो कि हम कितने ज्यादा पीछे हैं, जहां पर सब जगह पे एआई एंड ऑटोमेशन एज वेल एज अलग अलग लेवल पे बॉट्स बन रहे हैं, वहां पर ये अजीब से या फिर बहुत ही ज्यादा फिशी सी लाइंस चल रही है। इंडिया एज अ नेशन स्टैंड लेने के लिए एआई समिट करता है और इसमें टॉप लीडरशिप पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे। इस एआई समिट में हाईलाइट क्या बनता है, चाइनीज रोबोट फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी। About the origin and ownership of the technology that was being showcased. Now, controversy has erupted after Galgotia's university faced online backlash for showcasing a robotic dog labeled Orion at the AI Summit Expo that critics said was actually a Chinese-made robot. ये थी AI Summit जो कि ग्लोबल लेवल पे सब देख रहे थे, उसकी हेडलाइंस। इवन मेरे को बाद में ये पता चला कि सर्वम एआई करके एक इसमें अपने आप को शोकेस किया था, जिसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला है। नाउ सर्वम एआई के बारे में एक्चुअल में मेरे को जो इंटरनेट एज वेल एज न्यूज से आसानी से पता चलना चाहिए था। मुझे उस समय जब ये एआई समिट हुआ था, एक हफ्ते बाद मुझे एक्चुअल में सर्वम एआई के बारे में उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, उसके डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ना पड़े कि एक्चुअल में सर्वम एआई क्या होता है। और ये बात नहीं है कि मैं रिसर्च नहीं कर सकता, बट द फैक्ट इज कुछ चीजें आसानी से आपको गैदर हो जानी चाहिए, जस्ट लाइक सर्वम एआई के बारे में। नाउ सर्वम एआई इज आल्सो द एआई मॉडल जस्ट लाइक जीपीटी, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा रीजनल फ्रेंडली लिंग्विस्टिक वे में ये अलग अलग लैंग्वेजेस पे वर्क करता है, एज वेल एज इसके सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग सर्विस देते हैं। चैट जीपीटी लेवल का नहीं, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर कोई इंडिया में यूज कर रहा है, द मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शायद तक आपको सर्वम से ही मिलेगी। इंडियन कॉलेजेस का इतना आउटडेटेड सिलेबस है, यानी कि इंजीनियरिंग बस की बात करें तो द मोस्ट इफिशिएंट जो सबसे सही सिलेबस मिलेगा आपको वो इंजीनियरिंग का ही मिलेगा, बट उसका भी सिलेबस आपको नॉर्मल आईटी फंक्शंस के लिए भी वैलिड नहीं करता। कॉलेज आपको इतना तक नहीं सिखा पाएगा कि आप उस इंडस्ट्री में जा पाए। आपको यूट्यूब अलग अलग कोर्सेज से आप अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन सीख रहे होते हैं, और आप एक नॉर्मल आईटी कंपनी में एज अ प्लेसमेंट ग्रैब करते हैं। कुछ लोग जो इस तरह आते हैं, बट देन टू आईटी कंपनीज का कहना रहता है कि ये लोग अभी इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है। इसी वजह से इंफोसिस जैसी कंपनीज अपना एक मैसूर में एक ट्रेनिंग सेंटर ही बना के रखी, जहां पर वो न्यूली ग्रेजुएटेड लोगों को जो उनकी कंपनी में आते हैं उधर पर 1 साल तक ट्रेन कर रही होती है, और उनकी ट्रेनिंग इतनी ठीक ठाक हो जाती है कि वो नॉर्मल से ऑपरेशंस हैंडल कर सके फॉर द आईटी सर्विसेज जो कि उन्हें मिल रहे होंगे फ्रॉम द यूएस बेस्ड क्लाइंट्स या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एक लेवल का फैक्ट ये भी है कि कंपनीज में अब सीनियर मैनेजर्स एज वेल एज टॉप मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एज वेल मिड लेवल मैनेजर्स को ले ऑफ किया जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि
जब टॉप लीडरशिप या मिड लेवल की लीडरशिप किसी एरिया की बंद होती है या फिर डिपार्टमेंट की बंद होती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो सेक्शन है या सेक्टर है वो एक्चुअली में बंद हो रहा है या फिर उसकी नीड नहीं है। एक कंक्लूजन की बात ये है कि एवरी इंडस्ट्री हैज द रेवोल्यूशन। कोर की बात करें, चाहे लीडिंग आईटी सर्विसेज की बात करें या फिर कुछ और इंडस्ट्री की बात करें, कोर में भी इस लेवल तक ऑटोमेशन हुआ इन द 2000 से लेकर 2020 तक। अब एक लेवल आ चुका है जो कि बोरिंग इंडस्ट्री या फिर एवरग्रीन ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल है, वो इतने अचीवमेंट ले चुकी है कि अब कोई ऑटोमेशन करना या फिर इवॉल्व करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम या फिर एक टाइप का कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। IT एरिया इज द मोस्ट इवॉल्विंग थिंग, जहां पर अभी इवॉल्व की होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। एक अलग टाइप का कॉन्ट्ररी फैक्ट मिल जाता है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट अपने रेवेन्यूज का 12 to 13% R&D में लगाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32.5 बिलियन $। वहीं पर इंडियन IT इसका 1 से 3% के बीच ही अपने रेवेन्यू का लगाता है। मतलब इंफोसिस ने इस साल 1062 करोड़ एलोकेट किए थे फॉर द बजट ऑफ R&D। मतलब ये पिछले साल से समथिंग 100 से 150 करोड़ ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्ररी बात हो जाती है कि जिस इंडस्ट्री का एम ही है कि इवॉल्व करके लाइफ बेटर करना है, या फिर इवोल्यूशन ही मेन है, या फिर ग्रोथ ही मेन है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही मेन है, या इनोवेशन ही एक की कॉन्सेप्ट है उस इंडस्ट्री का, उसका R&D सेक्शन इतना कम इन्वेस्ट कर रहा है और फिर बोलते वी आर नॉट रेडी फॉर द AI सुपर पावर। मतलब जो काम इंडियन कॉलेजेस कर रहे थे बेस्ड ऑन द आउटडेटेड सिलेबस, टॉप IT फर्म्स भी इतना ज्यादा कुछ कर नहीं रही है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो सिंपल एक मॉडल को फॉलो कर रही है कि हेडकाउंट बढ़ाओ, सप्लाई करो फॉर द US बेस्ड स्टार्टअप्स या फिर US बेस्ड कंपनी, सर्विसेज दो और बीच का प्रॉफिट कर लो। इंडियन IT फर्म पार्टनर कर रही है विद द AI मॉडल पे, इंटीग्रेट कर रही है फॉर बेटर फ्लो ऑफ एफिशिएंसी इन देयर सिस्टम। यानी कि एक मेरा ओपिनियन में बोलूं, द वन कंपनीज जो आपको पूरी तरीके से तबाह करने के लिए आ चुकी है बेस्ड ऑन देयर AI मॉडल्स, उसके साथ आप पार्टनर कर रहे हैं। और इसका जो कंपनी परसेप्टिव है ये आ सकता है कि इससे उनका बेटर एफिशिएंसी होगा फॉर द एम्प्लॉयज, जल्दी काम होगा और मोस्ट प्रॉफिट बना रहे होंगे और मोर टाइम ऑन द रिसर्च और डेवलपमेंट हम कर रहे होंगे। और ये कॉन्ट्ररी है कि एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में मैं कमरे में बैठे बैठे कुछ ना कुछ ओपिनियन दे सकता हूँ, विद वन ऑफिशियल उनके कुछ अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। काफी पहले ही CEO ऑफ एनवीडिया ने एक बात कह दी थी, AI विल नॉट टेक योर जॉब बट द पर्सन हु विल बी नोइंग AI वुड। और ये स्टेटमेंट आज की डेट में काफी ज्यादा वैलिड दिख रही है कि सिंस एज अ ह्यूमन जब हमने देखा है कि हम इवॉल्व करते हुए बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स, बेस्ड ऑन द लाइफ, हमने इवॉल्व करते हुए एक मुकाम तक हासिल हुआ है। मतलब एज अ ह्यूमन भी हम एवरी सिंगल टाइम इवॉल्व कर रहे हैं, एवरी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है। तो सिंस IT इज द वन जो कि रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन के लिए जानी जाती है, वो इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, खासकर इंडियन IT। इंडियन IT एक ऐसे सेक्शन में है जहां पर वो पहाड़ चढ़ रही है और बीच में फंसी हुई है और वहां से वो स्टैग्नेट करते या तो नीचे गिर जाएगी, बिकॉज पत्थर की फिसलन बहुत ज्यादा है और उसे गिरना ही पड़ेगा, या तो गिरेगी या तो उसे ट्राई आउट करते हुए अपनी चीजों को फिक्स करते हुए उसे टॉप लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड में है जहां पर हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप अब स्टैग्नेट रहोगे या फिर फिक्स रहोगे। ईदर यू हैव टू बी इन द कोर साइड, यहाँ पर सिविल इंडस्ट्री हो गई, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो गई, जहां पर अब ऑटोमेशन या फिर एक बोरिंग बिजनेस बन चुके हैं, जहां पर अब इनोवेशन इतना एज सच नहीं हो रहा। बट IT इज द इमर्जिंग एरिया जहां पर इनोवेशन हर दिन, हर मिनट और ऐसे नए AI टूल्स आते रहेंगे जो डिसरप्ट करने के लिए काफी हैं। IT डेड हो रही है, नहीं हो रही है, आई डोंट नो, बट देयर इज अ फैक्ट कि IT का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो सालों से इंडियन IT ने फॉलो किया, सप्लाइंग द वर्कर्स एंड गेटिंग द रेवेन्यू, वो एक्चुअली में चेंज हो रहा है। न्यू सिस्टम ऑफ AI की वजह से न्यू सिस्टम ऑफ IT इंट्रोड्यूस हो रहा है और ये फैक्ट रहेगा। इस वीडियो में मैंने एक चीज कवर नहीं की कि मोस्ट ऑफ द AI के जो फाउंडर्स है, AI कंपनीज के आज की डेट में फाउंडर्स है, वो बहुत सारे इंडियंस हैं। बाय द वे, अब इसको थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे तो ये जो कंपनीज जो बना रहे हैं शायद US बेस पे है, जो कि एक कॉन्ट्ररी बात है कि इंडिया के लोग US बेस पे ही अपनी AI कंपनीज रन कर रहे हैं, इन द सिटिंग इन द सम सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क में या एक्सेट्रा एरियाज में। कुछ ज्यादा से ज्यादा लोग वो IITians हैं। नाउ आई हैव अ फैक्ट कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ऐसा क्या है कि सभी कंपनीज IITians के लिए क्रेजी हो रखी है, चाहे वो US बेस्ड हो चाहे वो इंडियन बेस्ड हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, कि जहां पर आप जानो कि आखिर IITians के पास ऐसा क्या है कि कंपनीज जस्ट फॉल इन लव विद देम।